we are looking at now solution of homework section of depreciation chapter. Depreciation chapter में homework section में जो भी questions है उसका solution. तो first question हम लोग देख रहे हैं friends, homework section. Machinery account in books of Ramlal showed a debit balance of 15,000 on 1st April 2018. Opening balance दिया है. 1st October 18 he purchased a new machine costing 10,000. On 1st January 19, he sold out of one old machine for 2,000, whose book value in the beginning of the year was 3,000. Book value in the beginning of the year 3,000 है, बेचा कितने में है 2,000 में. मतलब जो ओपनिंग बैलेंस में मशीनरी दिया है उसी में से 3,000 का मशीन सोल्ड है. Machinery is to be depreciated at fixed rate of 10% on diminishing balance method, reducing balance method. Machinery account for the year ended 31st March 19 हमको शो करना है. We are supposed to prepare machinery account for the year ended 31st March 19. If we firstly do working for depreciation, हम लोग ओपनिंग बैलेंस वाला जो मशीन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे एज सोल्ड एंड अनसोल्ड. बुक वैल्यू ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर 1/4/18 3,000 का मशीनरी सोल्ड है, तो वी वुड से रिमेनिंग 12,000 इज अनसोल्ड. 15 - 3 12,000 इज अनसोल्ड. एंड देन ऑन 1st October 2018 परचेज किया है. Purchase on 1st October 2018. We are purchasing a new machine of 10,000. So we were having total machine of 15,000 plus new purchase of 10,000. Correct? 1st January को हमने ये first machine बेच दिया है. If we are selling this first machine on 1st January, हमको सबसे पहले depreciation अप टू 1st January चार्ज करना पड़ेगा. डेप्रीसिएशन अप टू 1st January चार्ज करना पड़ेगा. दैट इज डेप्रीसिएशन फॉर 9 months हमको चार्ज करना पड़ेगा. क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ओपनिंग बैलेंस पे 3,000 पे ही डेप्रीसिएशन लगेगा. 3,000 पे 10% फॉर 9 months कम्स टू 2,250 और 225. So 2,775 is the book value on the date of sale. Book value on the date of sale is 2,775. We are selling that machine for 2,000. बेच कितने में रहे हम लोग? 2,000 में. तो बैलेंस, remaining balance is nothing but loss on sale of machine. How much will be your loss? 3,000 minus 2,000 minus 225. 775 will be your loss. बाकी का मशीन अनसोल्ड है, तो on that remaining unsold machine we need to charge depreciation on 31st March 19 for full year. 12,000 पे 10% will be 1,200. 10,000 पे 10% but for 6 months will be 500. 1,700 total depreciation. So balance on 31/3/19 या on 1/4/19 ये सोल्ड है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है. 10,800 and 9,500. Total balance should be 20,300. $20,300. तो अब मशीनरी अकाउंट में एंट्रीज कैसे शो करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमको दिया है. ऑन 1st April 2018
ओपनिंग बैलेंस हमको मशीनरी अकाउंट में दिया है, ओपनिंग बैलेंस इज हाउ मच 15,000, डेट वाइज जाना है। फिर 1 अक्टूबर 2018 न्यू परचेज ऑफ मशीनरी, न्यू परचेज किया, एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, टोटल मशीनरी 25,000 का हो गया। फिर ऑन 1/1/2019 वी आर सेलिंग आवर फर्स्ट मशीन, तो फर्स्ट मशीन पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन का एंट्री, डेप्रीसिएशन टू एसेट 225, बेचा है, वैल्यू कम करके बेचा है, लॉस करके बेचा है, लॉस का एंट्री देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन 775, एंड बेच के पैसा मिला, उसका एंट्री देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2,000। देन ऑन 31 मार्च जो रिमेनिंग दोनों मशीन अनसोल्ड है उसका डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 1,700, क्लोजिंग बैलेंस 25,000 minus this, so 20,300 will be closing balance in our machinery account. Pause and copy. क्वेश्चन 2 फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2016 costing 60,000. Another machine was purchased on 1 January 17 costing 40,000. Further, a machine was purchased on 1 October 17 for 20,000. So there are 3 machines purchased. On 1 April 2018, 1/3 of the machine installed on 1 July 16. First machine का 1/3 part became obsolete and was sold for 76,000. Write up machinery account assuming that machinery was depreciated. So write up machinery account assuming that machinery was depreciated by fixed installment method, that is straight line method, at 10% per annum. What should be balance on machinery account on 1st April 2019? So we are supposed to prepare machinery account here for 16, 17, 17, 18 for 2 years. But before that, let's do our working. फर्स्ट मशीन 60,000 का परचेज किया था, उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उस फर्स्ट मशीन का 1/3 सेल किया था। तो वी वुड से मशीन 1 इज ऑफ 20,000, 1/3 ऑफ 60,000. Machine 2 is of remaining 40,000. First machine was purchased on which date? Sir, first machine was purchased on 1st of July 2016. फिर second machine was purchased on 1/1/17 for 40,000. थर्ड मशीन हमारे लिए 40,000 का परचेज किया हमने। अप टू 31 मार्च और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे।
on 31st March 2017. Depreciation on this machine will be from 1/7 to 31st March. From 1/7 to 31st March, 9 months. 10% for 9 months, 1500. On this second machine also, 10% for 9 months will be 3000. And on this third machine, it will be 10% for 1 month. So balance in machinery account will be 18,500, 37,000, 39,000. This is balance on 1/4/17. फिर further a new machine was purchased on 1st October 17. 1st October 17, new machine was purchased. New machine of 20,000 was purchased on 1st of October. First April 18, 1st April 18, that is in next year. तो अब सेकेंड ईयर में डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे 31st March 18 को. On this machine it will be on cost 2000, straight line method है. 4,000 original cost पे 10%, 4,000 again. And on this new purchase, depreciation for 6 months, 1,000. So balance will be 16,500, 33,000, 35,000 and 19,000. Total it will be 1,03,500. Now first machine is sold on 1st April itself. If you are selling it on 1st April itself, you are not supposed to charge any further depreciation in this year. You are selling it for 76,000. So sale. You are selling the machine for 76,000. That means you are increasing its value and then selling it. You are selling it at a profit of 76 minus 16,500, 59,500. आपने 76,000 में मशीन बेचा है. वो मशीन जिसका बुक वैल्यू 16,500 था 76,000 में बेचा है, मतलब आपने 59,500 के प्रॉफिट में मशीन बेचा है. बाकी का दोनों मशीन अनसोल्ड है. तो डेप्रीसिएशन ऑन 31/3/19 4,000, 4,000 again, 2,000. Balance on 1/4/19 29,000, 31,000, 17,000.
Correct. So now how entries will be posted in machinery account? Machinery account, first entry 1716. We are purchasing a machine on 1716. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नया मशीन खरीदा हमने कितने का? 60,000 का मशीन खरीदा 1716. फिर 1117 40,000 का दूसरा मशीन परचेज किया. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. डेप्रिसिएशन चार्ज किया ऑन 31st मार्च. टोटल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में 5,500. Closing balance will be 94,500. सेकेंड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे. Balance brought down is 94,500. New machine purchased in second year is of 20,000. नया मशीन हमने खरीदा 20,000 का. एंट्री हो जाएगा मशीनरी टू बैंक 20,000. Depreciation in second year 11,000. Balance now remaining. थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस मशीनरी अकाउंट में हमको मिल गया. $1,03,500. थर्ड ईयर में वी आर सेलिंग द मशीन. फॉर सेलिंग द मशीन entry will be bank to machine. For selling it, entry will be bank account debit to machine. And we are selling this machine at a profit of 59,500. मतलब मशीन का वैल्यू इंक्रीज करके उसको बेचा है. मशीन का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए मशीन अकाउंट और डेबिट करेंगे. एंट्री पास करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. रिमेनिंग मशीन्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन 31st मार्च. Depreciation account debit to machine, that is 10,000. $163. Balance carried forward in machinery account will be 77,000. This will be the opening balance on 1/4/19.
Question 3, friends. A company depreciates its machinery at 10% per annum on reducing balance method. On 1/4/18, balance in machinery account was 72,000. Opening balance दिया है. On 1/10/18, a machine bought on 1/10/15, जो 1/10/15 को खरीदा था 10,000 में, वो अभी 1/10/18 को हमने बेचा है for 6,000. While another machine purchased for 16,000 on 1/10/16 was sold for 13,200. So on 1/10/18 we are selling two machines, a machine which was purchased for 10,000 on 1/10/15 and another machine which was purchased for 16,000 on 1/10/16. Both these machines are being sold on 1/10/18. On 1/1/19 a new machine was purchased for 18,000 and installed at a cost of 2,000. Show machinery account for the year 18-19. हमको machinery account prepare करना है for the year 18-19. वर्किंग बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग. वर्किंग कैसे कर रहे हैं हम लोग. See, we have one machine which was purchased on 1/10/15. We have second machine purchased on 1/10/16. Remaining machines out of opening balance. And a fourth machine which is purchased on 1/1/19. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उस मशीन से जो हमने परचेज किया था 1/10/15 को, फर्स्ट डेट, परचेज ऑन 1/10/15. ऑन 1/10/15 हमने एक मशीन परचेज किया था फॉर 10,000. डेप्रीसिएशन ऑन दैट मशीन ऑन 31/3/16 ईयर एंड पे हाफ ईयर का लगेगा 500 सर. 9,500 is balance on 1/4/16. न्यू परचेज किया है, परचेज ऑन 1/10/16. न्यू परचेज हमने 16,000 का किया है, दैट इज सेकेंड मशीन. डेप्रीसिएशन on 31/3/17 on this machine, reducing balance method है 950. on this machine 6 months का depreciation 800. तो balance on 1/4/17 ये मशीन का बैलेंस हो जाएगा 8,550 and 15,200. ड्यूरिंग 17-18 कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया है, डायरेक्टली डेप्रीसिएशन डिडक्ट करेंगे. ऑन 31/3/18 855 and 1520. So balance on 1/4/18. अब बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स, बैलेंस ऑन 1/4/18 कितना होगा. 8,550 minus 855, 7,695 will be balance of first machine on 1/4/18. 15,200 minus 1,520, 13,680 is balance of second machine on 1/4/18. Total balance of machinery account on 1/4/18 कितना दिया है सर. टोटल बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट 1/4/18 को 72,000 दिया है. मतलब कुछ और मशीन्स भी था जो हमने परचेज किया था, उसका डिटेल नहीं दिया है, इसलिए हमने पहले टोटल नहीं रिकॉर्ड किया है. दूसरा मशीन भी था जो ऑलरेडी पड़ा था हमारे पास, कब खरीदा है, कितने का खरीदा है, उसका डिटेल नहीं था हमारे पास, तो हमने वहां पे टोटल रिकॉर्ड नहीं किया है. लेकिन हमको यह पता है आउट ऑफ 72,000 फर्स्ट मशीन 7,695 का बैलेंस है 1/4/18 को. फर्स्ट मशीन
72,000 इज टोटल बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट, उसमें से फर्स्ट मशीन का बैलेंस 7695 है एंड सेकेंड मशीन का बैलेंस 13680 है। तो 50625 का अदर मशीन्स होगा ना, 72,000 माइनस दीज टू बैलेंसेस, 50625 is balance of other machines which would have purchased earlier. परचेज कितने में किया वो हमको पता ही नहीं करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो डेप्रीसिएशन तो बैलेंस पे ही कैलकुलेट करना है। करेक्ट। ये जो दोनों मशीन हमने सेल किया है, कब सेल किया है? 1 अक्टूबर को सेल किया है सर, तो डेप्रीसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल अप टू 1 अक्टूबर 2018, 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन 385 and 684. सेल कितने में किया है? सेलिंग प्राइस 11015 को जो मशीन खरीदा था, 11015 को जो मशीन खरीदा था, इट वॉज सोल्ड फॉर 6000. दिस फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड फॉर 6000. सेकेंड मशीन वॉज परचेस्ड वॉज सोल्ड फॉर 13,200. मतलब 19,200 इज योर टोटल सेलिंग प्राइस. फर्स्ट मशीन 7695 माइनस 385 डेप्रीसिएशन 7310 का था, बेचा है 6000 में, तो 1310 इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन. सेकेंड मशीन 13680 का था, माइनस 684 डेप्रीसिएशन 12996 का मशीन 13200 में बेचा है, तो वी वुड से 204 is profit on sale of the second machine. We would say profit or loss. फर्स्ट मशीन बेच के 1310 का लॉस हो रहा है, सेकेंड मशीन पे 204 का प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट 1106 इज लॉस. क्लियर? फिर एक न्यू मशीन परचेज किया, परचेज ऑन 1119, न्यू मशीन परचेज ऑन 1119, न्यू मशीन परचेज किया 18,000 और उसे इंस्टॉल किया एट अ कॉस्ट ऑफ 2,000, मतलब न्यू मशीन का टोटल कॉस्ट 20,000 हो गया. फिर डेप्रीसिएशन ऑन 31/3/19, डेप्रीसिएशन, ये दोनों सोल्ड मशीन पे कोई डेप्रीसिएशन नहीं आएगा. 5063 ऑन दिस मशीन एंड 20,000 पे 1119 को खरीदा है, तो 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन. तो बैलेंस नाउ रिमेनिंग, बैलेंस कितना बच गया? 50625 45562. करेक्ट सर. मशीनरी अकाउंट में सी डिफरेंट पार्ट इस समय क्या था फ्रेंड्स, 1418 को बैलेंस दिया है, हमको ये क्लैरिफाई कर दिया है 2 मशीन हमने बेचा है, लेकिन वो 2 मशीन का 1418 को कितना वैल्यू था वो नहीं दिया है. वो 2 मशीन का ऑफ ऑन दिस बैलेंस डेट ऑन 1419 कितना वैल्यू था, 1418 कितना वैल्यू था वो नहीं दिया है. हमको ये मशीन का परचेज प्राइस ऑन डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है, तो हमको ऑन डेट ऑफ परचेज
सॉरी ऑन 1418 ये दोनों मशीन का कितना बैलेंस है वो ढूंढना पड़ेगा। 1418 को ये दोनों का जो भी बैलेंस है ये हम 72,000 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग मशीन का बैलेंस हमको मिलेगा। तो दिस वाज द डिफरेंट पार्ट इन दिस सब। अकाउंट हमको खाली लास्ट ईयर का ही प्रिपेयर करना है। 1418 ओपनिंग बैलेंस मशीनरी अकाउंट में दिया है 72,000। डेप्रीसिएशन सेल किया है तो सेल का ट्रीटमेंट देंगे ना। 11018 depreciation on both the machines sold 385 plus 684 1069 for sale एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 19,200। लॉस ऑन सेल एंट्री हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। प्रॉफिट 20 का है एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 1119 न्यू मशीनरी परचेज किया है, न्यू मशीनरी परचेज किया है उसके लिए एंट्री क्या देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक सर। And then on 31st March 19 depreciation on remaining machinery। 31st मार्च को बाकी की मशीनरी का डेप्रीसिएशन इट विल बी 5563। बैलेंस मशीनरी अकाउंट में 65062। तो अगर आपने मशीनरी कैलकुलेशन प्रॉपर्ली किया है तो अकाउंट में खाली इंफॉर्मेशन कॉपी करना ही रह जाता है। तो प्लीज पॉज एंड कॉपी दिस। Question 4 friends. Lakshmi maintains only one ledger account for all machineries. She purchased following machineries during 15-16 and 16-17. अलग अलग डेट को परचेज दिया हुआ है 1-4-15 64,000, 1-7-15 1-10-15 1-4-16 31st March 17 on different dates परचेज किया हुआ है। Machinery which was purchased on 1st April 15, that is first machine, was burnt on 1st October 17. Scrap value recovered was 4,000. Machinery which was purchased on 1st July 15, that is second machine, was sold for 60,000 on 31st March 19. Depreciation straight line method से चार्ज कर रहे हैं 10% per annum. Machinery account for 4 years हमको prepare करना है. We are supposed to prepare machinery account for 4 years here. There are 5 machines rather purchased. On different dates हमने मशीन परचेज किया है। सबसे पहले 1-4-15 को 64,000 का मशीन परचेज किया है।
1415, 64,000 का मशीन परचेज किया है। $64,000। ड्यूरिंग 1715 को एक और मशीन परचेज किया 38,000 का। वन 80,000 का थर्ड मशीन परचेज किया। March 16 डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे। Now depreciation is 10% by straight line method. तो first machine पे it will be 6,400 simply. Second machine पे 9 months का depreciation 38,000 पे 9 months का depreciation 2850. 11015 को मशीन खरीदा है, उस पे 6 months का depreciation 4,000. 12,100 total depreciation charged. Balance on 1/4/16. First machine 57,600. Second machine 38,000 minus 2850, 35,150, 76,000. $169. One sec. Depreciation will be 6,400 plus 2850 plus 4,000. 13,250 होगा. $168,750. Then new machine is purchased on 1/4/16 itself, 86,000. $86,000 का न्यू मशीन हमने परचेज किया है। March 17 1 लाख का एक और न्यू मशीन परचेज किया है। Depreciation on 31st March on this machine 6,400. स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा 3,800
8,000, 86,000 फुल ईयर का डेप्रीसिएशन 8,600 एंड लास्ट डेट को खरीदा है, इस पे कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा। $26,800। Balance on 1,417, 51,200, 31,350, 68,000, 77,400 and 1 lakh। $327,950 total machinery। Then 1st October 17, ये जो फर्स्ट मशीन था, फर्स्ट मशीन, दिस वॉज बर्न्ड, सो इट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। 1st अक्टूबर को बर्न हुआ है तो 1st अक्टूबर तक यूज तो किया ही है। डेप्रीसिएशन पहले 1st अक्टूबर 17 तक का चार्ज होगा। जिस डेट को डिस्पोज ऑफ किया वहां तक यूज किया है हमने, वहां तक का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, मतलब 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन 3,200। देन इट इज डिस्पोज्ड ऑफ, सोल्ड फॉर 4,000, स्क्रैप वैल्यू रिकवर किया 4,000, मतलब इसको बेच के 4,000 रुपए मिला है, तो रिमेनिंग विल बी आर लॉस। $51,200 minus 3,200 minus 4,000. 44,000 is our loss on sale of this machine. We would say this is loss by fire. 3,200 is ka depreciation. 4,000 is loss. And 4,000 is selling price and 44,000 is loss. बाकी का मशीन्स एज इट इज पड़ा है, तो डेप्रीसिएशन ऑन 31,318 अगेन 3,800, 8,000, 8,600 and now 10,000. Total depreciation 16, 19, 20,000, 30,400. Balance on 1,418. 31,350 minus 3,800, 27,550, 60,000, 68,800 and 90,000. 246,350.
Lastly, machine which was purchased on 1st July, that is second machine, 1st July 15 was sold for 60,000 on 31st March 19. तो डायरेक्टली 31st मार्च 19 तक का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे. 31st मार्च 19 तक का डेप्रीसिएशन 3800 अगेन 8000 8600 10,000 30,400. The second machine is sold. The second machine is sold for 60,000, I suppose. The second machine is sold for 60,000. Book value कितना है? 27,550 minus 3,800. Book value is 23,750 and we are selling it for 60,000. So we are selling it at a profit of 36,250. Sale 60,000 and profit 36,250. Closing balance. ये दोनों मशीन बेच दिया है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है. 52,000, 60,200, 80,000. $192,200. मशीनरी अकाउंट में इतना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए. $192,200 should be closing balance in your machinery account. So now how entries will be posted in machinery account? For 4 years हमको machinery account prepare करना है. 1st April परचेज किया हमने मशीनरी टू बैंक 64,000. 1st जुलाई 38,000 का दूसरा मशीन खरीदा, मशीनरी टू बैंक 38,000. खाली इंफॉर्मेशन कॉपी करना है अब मशीनरी अकाउंट में. 1st अक्टूबर 80,000 का तीसरा मशीन खरीदा, मशीनरी टू बैंक 80,000. 31st March 2016 depreciation depreciation 13,250 total depreciation. Closing balance in your machinery account 168,750. Balance 168,750. न्यू परचेज 1416 को किया 86,000, मशीनरी टू बैंक 31st मार्च को 1 लाख का थर्ड मशीन परचेज किया. 31st March 17 third machine of 1 lakh is being purchased. So machinery to bank. And then depreciation of 26,800. क्लोजिंग बैलेंस मशीनरी अकाउंट में कितना हो गया? क्लोजिंग बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट 327,950 फ्रेंड्स.
2017-18 में फर्स्ट डेट को ही हमने पहले सेल किया है, सेल का एंट्री पास करेंगे। October 1st, depreciation on machine which was burnt, depreciation to machine 3200. फिर for sale, for amount recovered as scrap, cash or bank account debit to machine. And for loss, it is not loss on sale, we would say it is loss by fire. Loss by fire account debit to machine 44,000. Then on 31st March 18, depreciation on remaining machines. जो हमारी बाकी की मशीन्स है उस पे डेप्रीसिएशन कितना है? रिमेनिंग मशीन्स पे टोटल डेप्रीसिएशन 30,400. रिमेनिंग मशीन्स पे टोटल डेप्रीसिएशन 30,400. बैलेंस कैरिड डाउन. तो अब बैलेंस कितना है? बैलेंस 246,350 हो गया. बैलेंस इज 246,350. $246,350 is the opening balance. अब 18-19 में डेप्रीसिएशन सीधा चार्ज करेंगे. 18-19 में 30,400 डेप्रीसिएशन चार्ज किया. 31st March 19 by depreciation. फिर 31st March 19 को ये वाला मशीन बेचा हमने. कितने में बेचा? 60,000 में बेचा है. फॉर सेल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन. बैंक टू मशीन 60,000. एंड मशीन बेच के 36,250 प्रॉफिट हो रहा है. मतलब मशीन का वैल्यू इंक्रीज करके बेचा है, मशीन का वैल्यू बढ़ा के बेचा है. तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड to profit on sale. $36,250. तो क्लोजिंग बैलेंस मशीनरी अकाउंट में कितना बच जाएगा? इट इज 192,900. Pause and copy the example. क्वेश्चन 5 देखेंगे फ्रेंड्स. क्वेश्चन 5, LG ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड 10 ट्रक्स at rupees 45 lakh each on 1st April 2014. On 1st October 16, one truck was involved in an accident and is completely destroyed, and 27 lakh is received from insurance company in full settlement. On same date, another truck is purchased by company for a sum of 50 lakh. Depreciation is 20% on original cost, that is straight line method. हमें ट्रक्स अकाउंट प्रिपेयर करना है. कंपनी इज फॉलोइंग कैलेंडर ईयर, तो हमें ट्रक अकाउंट प्रिपेयर करना है. गिव ट्रक अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग 31st December 17. मतलब हमको ट्रक्स अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर 2016 and 2017. See, we are having 3 trucks.
we are supposed to prepare truck account for 2 years. फॉर डूइंग द वर्किंग करने के लिए हम लोग अपने ट्रक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 ट्रक दैट इज डिस्ट्रॉयड, रिमेनिंग 9 ट्रक्स which were not destroyed, and a new truck which was purchased. तो this is 1 truck जो destroy हो गया था. These are 9 trucks which are not destroyed. This is new truck which is purchased. तो हमने सबसे पहले 1 अप्रैल 14 को 10 ट्रक्स परचेज किए. परचेज on 1st April 14. That truck which was destroyed was costing 45 lakh. वो ट्रक जो डिस्ट्रॉय हो गया था वो 45 लाख का था. रिमेनिंग 9 ट्रक्स उसका कॉस्ट कितना? 45 लाख इंटू 9, 4 करोड़ 5 लाख. टोटल 4 करोड़ 50 लाख के ट्रक्स हमने परचेज किए. डेप्रीसिएशन 2014 में 31 दिसंबर 2014 45 लाख पे 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आएगा. 20% फॉर 9 मंथ्स 6,75,000. 4 करोड़ 5 लाख पे 20% for 9 months, 60,75,000. Total depreciation 67,50,000. Balance on 1/1/15 38,25,000. Third 3 crore 44,25,000. $38 3 crore 82,50,000. This first truck was destroyed on which date? This first truck was destroyed on 1st October 2016. So 2015 में will charge depreciation for full year. $9 lakh on this first truck. And 81 lakh on the second truck. Balance on 1/1/16 $29,25,000. 344,25,000 minus 81 lakh 2632 2 crore 63 lakh 25,000. 29 lakh 2 crore 92 lakh 50,000. Now this first truck was destroyed on which date? 1st October 16. So on this first truck हमें सबसे पहले depreciation provide करना है on 1st October 16. That is depreciation for 6 months 4,50,000. तो 29,25,000 minus 4,50,000.
24,75,000 उसका बुक वैल्यू था। $24,75,000 was its book value, and insurance company is paying how much? 27 lakh. Insurance claim received is 27 lakh. We would say on sale of this first truck, ये फर्स्ट ट्रक हमने इंश्योरेंस कंपनी को 27 लाख में बेच दिया है। तो इंश्योरेंस कंपनी से 27 लाख अगर मिल रहा है तो हमको तो ज्यादा पैसा मिल रहा है। 2,25,000 इज प्रॉफिट। 2,25,000 इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दिस ट्रक। अगेन 29,25,000 बुक वैल्यू था फर्स्ट डेट को। डेप्रीसिएशन 4,50,000, 6 मंथ्स का हमने माइनस किया, तो ऑन द डे इट वॉज डिस्ट्रॉयड 24,75,000। 24,75,000 उसका बुक वैल्यू था। अगेंस्ट दैट इंश्योरेंस कंपनी से 27 लाख रुपीज मिला है। सो 2,25,000 इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दिस ट्रक टू इंश्योरेंस कंपनी। ये ट्रक इंश्योरेंस कंपनी को हमने बेचा, उस पे 2,25,000 का प्रॉफिट हुआ। उसी दिन न्यू ट्रक भी परचेज किया है। 1 अक्टूबर 16 को न्यू ट्रक 50 लाख का परचेज किया है। वी हैव परचेज न्यू ट्रक ऑफ 50 लाख। डेप्रीसिएशन on 31/12/16. See, depreciation here won't be 4,50,000, it will be 675. Sorry, depreciation will be 6,75,000. 9 months का depreciation. So 29,25,000 minus 675 minus 27 lakh, 4,50,000 is profit on sale. $4,50,000 is profit on sale of this truck. Then on 31/12/16, depreciation on remaining unsold trucks is 81 lakh again. And on this truck purchased on 1st October, 3 months का depreciation, 3 months का, it will be 2,50,000. तो 83,50,000. $263,25,000. 18,22,500. This is balance on 1/1/17. $47,50,000. $65,72,500.
1822,500 plus 47 lakh. It is 2297. 2 crore 29 lakh 75,000. 2017, we will simply provide depreciation for full year. ₹81 lakh. 10 lakh rupees is depreciation. So 91 lakh. Balance on 31/12/17. 1 crore 1,25,000. 37 lakh 50,000. So 1 crore 38 lakh 75,000. That should be closing balance of your machinery account, of your truck account. ट्रक अकाउंट यहां प्रिपेयर करने बोला है फॉर 2 years. 2 years मतलब फॉर 2016 एंड 2017. तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग 1/1/16 से स्टार्ट करेंगे. ₹2,92,50,000. फिर 1 अक्टूबर को बेचा है तो 1 अक्टूबर को डेप्रीसिएशन पहले चार्ज करेंगे. 1 अक्टूबर तक का डेप्रीसिएशन जो सोल्ड मशीन है उस पे, जो डिस्ट्रॉयड मशीन है उस पे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक 6,75,000. बेचा इंश्योरेंस कंपनी को है, डिस्ट्रॉय हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया ना, तो एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी को बेचा है, पैसा मिल रहा है. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रक 27 लाख. प्रॉफिट हो रहा है 4,50,000. प्रॉफिट मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ा के बेचा है हमने, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑन सेल आप बोल सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक टू इंश्योरेंस कंपनी 4,50,000. फिर नया परचेज आपने किया है 50 लाख का. ऑन दैट सेम डेट यू आर परचेजिंग न्यू ट्रक ऑफ 50 लाख. ट्रक टू कैश और बैंक. December 31, depreciation on all remaining trucks. Total depreciation on all remaining trucks 83,50,000. क्लोजिंग बैलेंस ट्रक अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस अब आपके पास कितना है 2,29,75,000. ₹2,29,75,000. इन 2017 और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. वी हैव टू ओनली प्रोवाइड डेप्रीसिएशन. ₹91 लाख. तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन? क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 1,38,75,000. तो प्लीज पॉज एंड कॉपी.